Before starting my presentation, I want to ask you a question. Which is more stronger, our bone or a piece of metal? You all think that a piece of metal is more stronger than our bone, but surprisingly no. Our bone is 5 times more stronger than a piece of metal. This is how biology is surprisingly so interesting. So I am Sumaya Ali, and today I am gonna help you about our human skeleton. So let's take a look on its function. Our human skeleton is a framework that gives us support, let us to move, and like different activities like when you are walking, when you are writing, when you are running. These all activities is just because of our skeleton. Like this skeleton, this man is sitting, it is just because of its skeleton. If the skeleton is not present here, it cannot sit. So let's take a look on the composition of human skeleton. Like which component make our skeleton? Bone and cartilage. The reason of making this slide is to tell you that bone is more harder and cartilage is softer. The cells which make up our bone is called osteocytes. What? Remember that point, osteocytes. And the cells which make up cartilage is chondrocytes. You always remember, और आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी कि हम कहते हैं कि अगर हमारे अंदर स्केलेटन नहीं होगा तो हमारी बॉडी जेलीफिश की तरह होगी, लेकिन हमारा ये बात भी बिल्कुल गलत है। जेलीफिश के अंदर भी स्केलेटन होता है। अब वो कौन सा स्केलेटन होता है हम वो देखते हैं। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, focus on this word. Hydrostatic means it is made up of water and that led us to move. This skeleton is basically made of fluid like collomic fluid or any other kind of fluid. It is found in soft-bodied animals or submarine animals. The example of this skeleton is jellyfish and earthworms. Second one is exoskeleton. Exoskeleton is the skeleton that is deposited outside our body. Exo is the word that derives from external. So basically it is the skeleton that is deposited outside our body. It found in arthropod, molluscs. The third one is endoskeleton that is deposited inside our body. Like we have the endoskeleton because we can't see our skeleton. It is inside our skin, inside our organs. So this kind of skeleton is found in high animals. I think you should have to look up these examples. Hydrostatic skeleton is found in this jellyfish and it is a kind of earthworm. It is not so hard to touch, it is soft to touch. That's why it is made up of hydrostatic skeleton. The second one is exoskeleton. It is a crab and these are the flies that is found in our home. Both of these are not so hard to touch and not so soft to touch. So that's why we divide this kind of animals, this kind of class in exoskeleton. Third one is endoskeleton, which is too much hard to touch, like our body. So this is the example of two higher animals which comes our body and the bone of our horse. आप सबको यही लगता होगा कि स्केलेटन याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि स्केलेटन हम याद नहीं कर सकते, लेकिन एक इसका इजी वे भी है। वो ये है कि हम डिवीजन कर लेते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। एक उसका कर लेते हैं एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी के मिड बोन्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं। लाइक हमारे स्कल बोन हो गई जो हमारी पूरी फेस की बोन है, उसके बाद हमारा स्टर्नम जो हमारे हार्ट के ऊपर होता है, उसके बाद हमारे रिब्स केज और बैक पर हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि पिक्चर में भी यही बताया हुआ है। हमारा स्कल, हमारा रिब केज, हमारा वर्टिब्रल कॉलम और हार्ट के ऊपर वाली बोन स्टर्नम। तो शायद आप लोगों को याद हो गया वो एक्सियल स्केलेटन। सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो बोन्स के नाम मैंने अभी लिए हैं उनके अलावा जो भी बोन्स हैं हमारी बॉडी में वो सारी आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन की भी दो कैटेगरीज होती हैं, ग्रिडल्स और लिम्स। हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स, ये दोनों होती हैं लिम्स। हमारे हैंड्स को कहते हैं फोर लिम्ब और हमारे लेग्स को कहते हैं हाइंड लिम्स। जिस चीज़ से हमारे लेग्स और हमारे हैंड्स अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रिडल्स। अब हम हैंड की एनाटॉमी कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारी शोल्डर बोन है, तो ये शोल्डर बेसिकली हमारा ग्रिडल होता है। ग्रिडल से पहले हमारे यहाँ पर एक ब्यूटी बोन होती है जिसे हम कॉलर बोन भी कह रहे होते हैं।
इस कॉलर बोन को, इस ब्यूटी बोन को कहते हैं क्लेविकल. बिहाइंड द क्लेविकल देयर इज स्कैपुला. This is the clavicle. Behind this bone there is scapula. After this, from pectoral girdle to our elbow bone there is humerus. That is that is before elbow and after pectoral girdle. After elbow bone there is two bones. That is radius and ulna. After radius and ulna there is a junction of bones that join our hand to this radius and ulna. This is called carpal. After carpal there are 5 other bones, that is called metacarpals, and after metacarpals there are 14 other bones, that is called phalanges. The same anatomy is for our leg. Like this is the pectoral pelvic girdle that is attached to our bone which is called femur. After this femur there is a junction which divides the femur and this part of our leg. After femur there is fibula and tibula, and like in our hand there is a junction of carpal, but in our leg there is a junction of tarsal. After tarsal there is metatarsal, and after metatarsal there is phalanges. So I hope you learned something. So हमने ये तो देख लिया कि बोन्स होती क्या है, बोन के नेम्स भी हमने सीख लिए. आई होप सो आपको याद हुए हो. उसके बाद हम ये सीखते हैं कि जब बोन टूट जाती है तो वो बनती कैसे है, जिसे हम बेसिकली फ्रैक्चर कह रहे होते हैं. तो अभी हम सीखेंगे हीलिंग ऑफ बोन. हीलिंग ऑफ बोन के 5 सब डिवीजन है. फर्स्ट वन इज हीमाटोमा. हीमाटोमा में क्या होता है, जब हमारी बोन रप्चर होती है तो ये तो वेल नोन बात है कि हमारे आर्टरीज जो है वो भी बर्स्ट आउट होंगे. तो रप्चर के बाद जब हमारे आर्टरीज बर्स्ट आउट होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमाटोमा. हीमाटोमा के बाद आप खुद सोचें, जब कोई सेल डाई होता है, जब कोई सेल बर्स्ट होगा तो ये तो वेल नोन बात है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी होगी. तो सेकेंड प्रोसेस वही है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन क्या काज करती है, वहाँ पर कोई डिजीज भी काज हो सकती है, वहाँ पर कोई बीमारी भी हो सकती है जो कि लाइक बोन डिजीज जो होती हैं. उसके बाद इन्फ्लेमेशन हो गई है तो बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो है, जो ब्लड चल रहा है वो WBCs को भेजता है. WBCs क्या करते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा. WBCs की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, लाइक फेगोसाइट्स, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स. तो WBCs वहाँ पर फेगोसाइट्स को भेजेंगे और फेगोसाइट्स एक्स्ट्रा मास को डाइजेस्ट कर लेगा, लाइक इंजेस्ट कर लेगा. उसके बाद में सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन. अब वहाँ की सारी सफाई हो गई है, अब हमें बोन बनानी है. सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बैक टू माय वर्ड्स, मैंने आप लोगों को कहा था कि बोन्स जो सेल बनाते हैं वो होते हैं ऑस्टियोसाइट्स. यहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स आएंगे और एक सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन करेंगे. व्हाट इज सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन? सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन जो है वो सॉफ्ट बोन होती है. लाइक ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पर आएंगे और एक सॉफ्ट बोन बन जाएगी. उसके बाद ऑस्टियोसाइट्स है वो कैल्शियम, जैसे हम सुनते हैं कि कैल्शियम हमें दूध पीना चाहिए, हमें बोन स्ट्रॉन्ग होती है. तो बेसिकली यहाँ पर कैल्शियम आएगी और यहाँ पर फॉस्फेट आएगी जो के बोन स्ट्रॉन्ग होगी. उसके बाद हमारी बोन प्रॉपर बन गई है. यू कैन सी दिस पिक्चर. लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमें बोन ये चाहिए थी लेकिन बन तो ये गई. आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर. तो ये डिफरेंस जो है सेल की काइंड होती है ऑस्टियोक्लास्ट. ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स यहाँ पर आएंगे और इस एक्स्ट्रा मास ऑफ बोन को इंजेस्ट कर देंगे. रीमॉडलिंग आप वर्ड से भी जान सकते हैं कि एक बोन का मॉडल बन गया है लेकिन हम उसको रीमॉडल कर रहे हैं, हम उसको दोबारा से बना रहे हैं. तो दोबारा से यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे और जो बोन हमें चाहिए थी वो हमें मिल जाएगी. So this is all about my presentation. Hope so you learned something.